Shri Prabhu Maharaj gave to the world the gospel of Sakalamata Siddhanta, which teaches us to see the Almighty in everything and everything in the Almighty. Shri Prabhu's teachings, based on the Upanishadic principles of Ekam Sadvipra Bahudha Vadanti, lay stress on the underlying unity of all faiths and teach us to love and respect our own religion without hating others, and to be able to see through the seeming differences a common set of philosophical, ethical, moral values which no religion of the world can disown. Shri Prabhu says, Ajnana kattala jnanada belake manika tumbyana jagadolage. And in another composition of his, he says, Khuda agar de nazar tumko to har surat khuda ki hai. When we see our God in everyone, how can there be hatred in our hearts? Manik Darshan, where we have all assembled today, is the spiritual center of the Manik Public School, where students clad in crisp white kurta pajamas assemble every evening to pray, meditate, and discover their own inner selves. It is indeed a testimony to the spiritual merit of this place that we have amidst us today Pujya Shri Shri Ravi Shankar Guruji. On the occasion of the inauguration of the renovated meditation center, it is indeed an honor and privilege to have the ambassador of world peace and harmony, Shri Shri Ravi Shankar Guruji, who has taken meditation, philosophy and yoga and spirituality beyond the lens of religion and geography. He is indeed an icon of India's great spiritual ethos across the world. सन 2003 में श्री श्री माणिक नगर पधारे थे एवं ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु सिद्धराज माणिक प्रभु महाराज से भेंट की थी। आज पुनश्च श्री श्री का माणिक नगर पधारना उनकी प्रभु महाराज के दिव्य कार्यों के प्रति आदर और प्रेम को दर्शाता है। आज हम सब ऐसे एक अनोखे आध्यात्मिक समागम में एकत्रित हैं जहां ज्ञान की गंगा एवं योग की यमुना का एक दिव्य संगम होने जा रहा है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें एक मंच पर दो आध्यात्मिक विभूतियों के दर्शन का लाभ हो रहा है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः काले न फलते तीर्थम सद्य साधु समागमः। अर्थात संत महात्माओं के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वे तीर्थों के समान पवित्र होते हैं। अब मैं परम आदरणीय श्री श्री रविशंकर गुरुजी एवं परम पूज्य श्री सद्गुरु ज्ञानराज माणिक प्रभु महाराज से उनके चरण कमलों में निवेदन करता हूं कि वे प्रभु महाराज के भावचित्र को सुमनांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वालन के द्वारा इस माणिक दर्शन नामक मुक्ताकाश ध्यान मंदिर का उद्घाटन संपन्न करें। ಈಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ
ಕರುಣಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಓಂ ನಮಃ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾಯ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನೇಕ ಮೂರ್ತಯೇ ನಿರ್ಮಲಾಯ ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ. ಇದು 3 ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಗಮ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 3 ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. सबको कन्नड़ समझ में आता है ना? हाँ, नहीं है, कितने लोगों को कन्नड़ नहीं समझ में आता. अच्छा, महाराष्ट्र से आए, हिंदी सबको समझ में आता है? ನಾವು ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ? ಹಾ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಮುಕ್ತಾಕಾಶ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟು, ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದ ಲಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿದಾಕಾಶವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಕ್ತಾಕಾಶವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿದಾಕಾಶ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಚಿತ್ತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ चित्त आकाश में कितने सारे विचार आते रहते हैं, भावनाएं उठती रहती हैं, तूफानें उठती रहती हैं. वो बंधी हुई होती है हमारा चित्त का आकाश. चित्त जब मुक्त हो जाता है तो मुक्त आकाश हो गया वहां. तो तुम आकाश स्वरूप हो. यही तो सारा वेदांत का सार है. क्या? खम खम ब्रह्मा. आकाश रूपी तुम हो और तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही घटाकाश और पटाकाश. जो भीतर जो आकाश है वही बाहर का आकाश है. ये दोनों एक ऐसा अनुभव में जान लेना, यही ध्यान है. हाँ, तो आपने बताया ना, अभी धूप में सब लोग बैठे हो अभी, मगर हवा चल पड़ी आज तो लगता है. इसलिए आप उन्होंने कह ही दिया, कोई ज़्यादा बोलने की बात नहीं. मैं बोलता भी बहुत कम हूँ, कहाँ बोलता हूँ, बहुत थोड़ा सा बोलता हूँ, 5-7 मिनट. मगर आप सब यहाँ बड़े भाग्यवान हैं, इस क्षेत्र में जो रहने वाले और इस विद्यार्थी जो इस आश्रम के देखरेख में पढ़ने वाले हैं, ये भी आप बहुत भाग्यशाली हैं. क्यों यहाँ आपको शिक्षा दीक्षा दोनों मिलता है, संस्कार मिलता है. नहीं तो ऐसी शिक्षा तो आजकल गूगल में मिल जाता है, ऐसे ही मिल जाता है. मगर वो शिक्षा का हमें लाभ लेना हो, वो संस्कार रूपी शिक्षा से जो मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है. हाँ? तो जिस दीक्षा से सब अज्ञान दूर हो जाता है उसी को दीक्षा बोलते हैं. ऐसे शिक्षा वही है जिससे हम कुछ समझकर, कुछ पाकर जीविका को आगे बढ़ाते हैं. तो जीवन में शिक्षा दीक्षा दोनों मिल रही है इस आश्रम में. यहाँ के जो पाठशालाओं में ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, कार्य है, ये कर रहे हैं. और आप सब अनुग्रहित है. आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार, प्रेम पूर्ण आशीर्वाद सबको. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. वंदे श्री प्रभु सद्गुरुम गुणनिधिम सद्भक्त कल्पद्रुमम मंदानाम शरणम शरण्यममलम नाथन्त्वनाथाश्रयम यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोयम वो विदधातु वांछित फलम माणिक्य कल्पद्रुमः. इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज यहाँ मैं माणिक प्रभु संस्थान की ओर से और आप सब की ओर से परम आदरणीय श्री श्री रविशंकर गुरु जी का अत्यंत हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं. 2003 में
परम पूज्य ब्रह्मलीन सिद्धराज माणिक प्रभु महाराज के काल में परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी माणिकनगर पधारे थे और उस समय मैं संस्थान के सचिव के रूप में कार्य करता था। मैंने श्री श्री से निवेदन किया था कि आप पुनश्च पधारें और उन्होंने कहा था जरूर, खंडिता बरती भी कहा था। और आज लगभग 16 साल के बाद श्री श्री पुनः यहाँ आए हैं। उन्होंने अपने वचन को निभाया है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री श्री रविशंकर जी ने अत्यंत अल्प समय में, अत्यंत अल्प शब्दों में ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना के विषय में आपसे थोड़े बहुत बातें की, आपको आशीर्वाद दिया। योग यानी क्या? दुख के संयोग का वियोग यानी योग है। दुख, हम सब देखिए हमारा जीवन बड़ा दुखी है, किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है। अब एक नया आ गया, वो वायरस आ गया, कौन सा, वो एक नई परेशानी पैदा हो गई। तो दुख जो है बढ़ रहे हैं। इन दुखों से अगर हमको छुटकारा पाना है तो उसके लिए क्या है? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग सन्नितम। गुरुजी क्या कार्य कर रहे हैं? तो योग के माध्यम से भारतीय समाज में, विश्व के समाज में जो दुख है उस दुख को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। और दुख किस लिए है? दुख हमारे मन के कारण है। योग की परिभाषा में पतंजलि भगवान मुनि कहते हैं कि योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा। योग यानी क्या? योग यानी चित्तवृत्ति का निरोध है। और हमको जो दुख हो रहा है वो हमारे मन के कारण हो रहा है। ये मन बड़ा खतरनाक है। और वहां आर्ट ऑफ लिविंग में गुरुजी मन को ट्रेन करते हैं, जैसे घोड़ों को ट्रेन करते हैं ना, जैसे घोड़े होते हैं, घोड़े, दुष्ट घोड़े, उन घोड़ों को जैसे ट्रेन करते हैं उस तरह से वहां मन को ट्रेन करते हैं। मन को ट्रेन करते हैं। मन बड़ा खतरनाक है। देखिए आपका मन कैसा है कि यहां आप लोग सब बैठे हुए यहां सत्संग के अंदर, मैं मेरे ख्याल से 3-4 बार आपके घर जाके आ चुका होगा। रोशनी को सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में 8 या 9 मिनट लगते हैं। मन जो है उतनी बार 8 बार सूर्य तक जाके आता है। मन बड़ा शक्तिशाली है। और अर्जुन ने स्वयं कहा भगवान से, मन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है, मन को बांधना बड़ा कठिन है। अर्जुन कहता है भगवान से, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ऐसा है कि ये मन इतना खतरनाक है। अर्जुन कह रहा है, देखिए सबसे बलशाली व्यक्ति कह रहा है, और जिसका ध्यान इतना तीव्र था कि वो पक्षी की आंख की तरफ उसकी ध्यान वो कथा आपको मालूम है, तो उसका ध्यान वहां पक्षी की आंख पे था। ऐसा मेडिटेशन करने वाला अर्जुन कह रहा है कि मन को बांधना कठिन है, मन को बांधना कठिन है। तो इसलिए भगवान ने उत्तर दिया है गीता में अर्जुन को कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस मन को बांधना अत्यंत कठिन है। माना भगवान ने, असंशयम कहा, माना। दुर्निग्रह है, चलम, चंचल है, मगर उसको बांधा जा सकता है। कैसे बांधा जा सकता है? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन कैसा है कि मन जो है वो हमेशा बाहर ही दौड़ेगा। मन कभी भी आत्मस्थ नहीं होता, वो बाहर दौड़ता है, इसलिए उसको मन कहते हैं। मनन करता है इसलिए वो मन कहते हैं। वो इंद्रियां हमारी सब बाहर है, उसके पीछे मन है, तो जहां इंद्रियां जाएंगी वहां मन जाएगा, मन जाएगा। उस मन को वापस खींचना जो है, इसका अभ्यास करना पड़ता है। मन की प्रकृति, मन की जाति, संसार की जाति एक। मन की जाति, संसार की जाति एक है। मन भी मैटर है, संसार भी मैटर है, हम मैटर नहीं है। गुरुजी ने शब्द बड़ा सुंदर प्रयोग किया कि चैतन्य है हम, आकाशवत हैं, हम चित स्वरूप हैं। हमारी जाति और मन की जाति एक नहीं है। मन की जाति जो है वो संसार की जाति एक है। मन संसार की तरफ जाएगा। दूध के अंदर अगर आप पानी मिला देंगे तो कैसा होगा? नहीं मिल सकता दूध के अंदर पानी, वो टेस्टलेस हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। तो दूध को किसके अंदर मिलाना पड़ेगा? उसकी जाति की जो वस्तु है उसके अंदर मिलाना पड़ेगा। कौन सी वस्तु? दूध की जाति की वस्तु दही है। उसको आप दही में मिलाएंगे तो दूध क्या हो जाएगा? वो इकट्ठा हो जाएगा। वैराग्य न चक रही थे, वो इकट्ठा हो जाएगा, एक तरफ आ जाएगा, घनीभूत हो जाएगा। और उसके बाद उसको मथेंगे तो उसके अंदर से मक्खन निकलेगा। और मक्खन को आप कितने भी पानी में डालिए वो पानी में नहीं मिलेगा। ये मामूली कार्य नहीं है कि दूध को बिलोना, दूध को मथना, दूध को दही के साथ मिलाना, संसार से अलग करना। और दूध को आप लोग कैसे रखते हैं घर के अंदर? अलमारी में रखते हैं, जाली वाली अलमारी में। क्यों? बिल्लियां न खा ले, बिल्लियां न पी ले। और बिल्लियां कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। 6 बिल्लियां हैं आपके घर में, 6 बिल्लियां हैं।
वो 6 बिल्लियां आके दूध को पीना चाहती हैं, उसको अलमारी में बंद रखना पड़ता है। अलमारी में बंद रख के उसको दही में मिला के उसको मथना पड़ता है, मथना पड़ता है। मथने का नाम साधना है। मथने के बाद उसके अंदर से मक्खन निकलता है। उसके बाद संसार रूपी पानी में 10 घड़े पानी में भी आप मक्खन को डालो, वो कभी उसके अंदर नहीं मिलेगा। मन संसार के अंदर नहीं मिलेगा। उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, उसके लिए वैराग्य चाहिए। और वो शिक्षा गुरुजी आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से वहां बेंगलोर में सबको दे रहे हैं। और वही शिक्षा माणिक प्रभु संस्थान के माध्यम से गत 180 वर्षों से प्रभु महाराज के आशीर्वाद से हम भी यहां पर वेदांत के माध्यम से दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो कार्य योग के माध्यम से वहां गुरुजी कर रहे हैं, वही कार्य यहां माणिक नगर में 180 वर्षों से वेदांत के माध्यम से होता रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज गुरुजी यहां पधारे और उन्होंने इस वास्तु का उद्घाटन किया। और मैं चाहूंगा कि आप बार बार यहां पधारें और ऐसे अनेक कार्यक्रम होते रहे, आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। और अगली बार जब आप आए तो थोड़ा अधिक बोलें। हाँ, आपको सुनने की बड़ी अपेक्षा है हमको। इतनी दूर से आप आए हैं तो हमको अपेक्षा थी और ज्यादा सुनने की, तो आपने हमको तृप्त नहीं किया। तो आइंदा जब आप आएंगे, जैसे उस समय आपने कहा खंडिता बरतिनी, उसमें 16 साल लगे, अब 16 साल मत लगाइए, 16 दिन 16 महीने, जब भी आपको फुर्सत हो इस भाग में आप आएं, या हम विशेष निमंत्रण देकर आपको बुलाएंगे, आप आएं और आप आकर हमारे विद्यार्थियों को, हमारे यहाँ की जनता को, यहाँ के समाज को उद्बोधित करें। इसलिए मैं आपका पुनश्च एक बार धन्यवाद अदा करता हूं कि आप पधारे, आपने मार्गदर्शन किया और हम सबको आह्लादित किया, आनंदित किया। उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रभु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आपका जो कार्य है वो दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करे। आपका लाभ, आपके ज्ञान का लाभ, आपके योग का लाभ समाज को, देश को, राष्ट्र को, विश्व को सदा सर्वदा होता रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज के अपने इस भाषण को यहां विराम देता हूं।